Good evening, friends. As we seen, retirement of partnership firm, why partner retires, the reasons for retiring of the partner, and the accounts which we have to prepare. As we know, when new partner take admission into the existing business, at that time we prepare all these accounts. Okay, same procedure will be follow here. We'll follow same procedure over here. Okay, but here is a one difference. When one partner get admission into the admission partnership firm, and at the time of retirement one partner goes out. Okay, now we have seen at the time of admission partner bring capital, bring amount of goodwill. Now here vice versa, when partner get retired he take his capital back and also amount of goodwill. So let's see the problem number 1, page number 172. Raja, Rani and Pradhan, 3 partners are there. Okay, let's start. I have already tick marked. So cash balance 7600 brought down as it is. These both are working note and all are accounts you have for which you have marks. Debtors asset 18,000, it has adjustment inner column. Then stock 70,500. Machinery 30,000. Land 70,000, it doesn't have any tick mark, died auto column. Furniture 5,000. It has one tick mark, so inner column. Now look at the liability. Creditors, here we will keep some amount for partners capital account. Creditors has the tick mark, inner column. Then bank OD. Okay, bank OD means bank overdraft, the loan from bank. It is the liability for us 9,700. It doesn't have any attachment. Reserve fund, as we know, reserve fund we always distribute at the time of admission also, retirement also, and death also, and dissolution also. Okay, keep in mind general reserve fund and balance of profit loss account you have to distribute among the old partners. Here all partners are old. At the time of admission of partnership firm only 2 partners were old, but here all partners are old and 1 partner is living. Raja, Rani and Pradhan. So hence all partners are old, so all partners have right to get पार्ट ऑफ रिजर्व फंड. सबको यहाँ पे रिजर्व फंड मिलने वाला है. बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल का रखो बाय रिजर्व फंड एज पर देयर रेशियो. व्हाट इज देयर रेशियो? द रेशियो इज 5:3:2. As per that ratio, if we distribute reserve fund, that will become 7,500, 4,500 एंड 3,000. हमेशा 3 चीज़ें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस का बैलेंस. तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है रिजर्व फंड अमंग ओल्ड पार्टनर. तो यहाँ पे सारे ओल्ड है, सबको मिलेगा. देन कैपिटल इज गिवन 42,000, 37,000 and 33,200. Okay, balance sheet done. Now look at the adjustments. Adjustment number 1, goodwill of the firm will be raised in the books of at rupees 20,000. गुडविल आपको 20,000 से फर्म के बुक में रेज करना है. मतलब जब गुडविल ऑफ द फर्म रेज करने के बोलते हैं तो ओल्ड पार्टनर के नाम पे गुडविल रेज होगा. तो यहाँ पे ऑल पार्टनर्स ओल्ड है तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में टू ओल्ड पार्टनर लिखो आप, चलेगा आपके लिए, या तो ऑल पार्टनर्स लिखो. कितना रेज करना है आपको? गुडविल 20,000. ओके, एंड एज पर देयर ओल्ड रेशियो गुडविल कितना रेज होगा तीनों के नाम पे? 10, 6 and 4.
गुडविल रेज हो गया। देन एडिशन नंबर सेकंड, स्टॉक रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू 10% से कम कर लो, लेस 10%, 1715 लेस हो गया, 15750 आउटर कॉलम में आएगा। और ये 1750 आपका लॉस है किसी वजह से, स्टॉक की वजह से, तो ऑल लॉसेस गोज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। सेम प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम कुछ ऐसे नया कुछ नहीं है, सारे एडजस्टमेंट सेम है इसके। फर्नीचर 5%, फर्नीचर 5% से लेस करना, 4750 आ जाएगा आउटर कॉलम। और अभी फर्नीचर लॉस हो गया अपना, कम हो गया है 250 से। अगेन नेक्स्ट, मशीनरी 11%, मशीनरी 11% से लेस करो, इट विल बिकम 3300, आफ्टर डेट यू विल गेट 26700। ओके, अगेन मशीनरी इज द लॉस फॉर अस, डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के रूल के अनुसार 3300। ओके, नाउ आरडीडी 5% निकालना है आपको डेटर्स पे, तो 5% आरडीडी, यहाँ पे ओल्ड आरडीडी था ही नहीं, तो न्यू आरडीडी डायरेक्ट माइनस कर दो 17100, और ये न्यू आरडीडी सीधा यहाँ पे ले लो आरडीडी। अगर ओल्ड आरडीडी तो हम माइनस करते थे, ओल्ड आरडीडी है ही नहीं। देन नेक्स्ट, क्रेडिट्स 200 रिटर्न ऑफ करना है आपको, रिटर्न ऑफ मीन्स लेस करना है। ओके, 200, देन रिमेनिंग 11,000 ले लो यहाँ पे। और जो 200 आपका है, क्रेडिट्स कम हुआ है, मतलब आपका बेनिफिट हुआ है, तो जाएगा यहाँ पे क्रेडिटर्स 200। जितना लायबिलिटी कम होता है उतना अपना बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, तो लेस होगा। ओके, और लास्ट वाला एडजस्टमेंट जो है, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5000 टू बी पेड बाय कैश, प्रधान को 5000 रुपीज़ कैश में दे दो। ओके, तो यहाँ पे कैश आएगा, टू कैश 5000 एंड कैश गोज आउट बाय प्रधान 5000। एंड आगे देखो, एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 5, एंड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो जो भी बचा हुआ अमाउंट है प्रधान का, वो उसके लोन अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है। ओके, तो अकाउंट पूरा क्लोज करना है आपको पहले। जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट में हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, रिवोल्यूशन का डिफरेंस। यहाँ पे सारे ओल्ड है तो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा इनका, 6200, उसमें से 200 माइनस 6000 बैलेंस आएगा, तीनों को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3000, 1800 एंड 1200। सेम कम्स ईयर, लॉस है ये, इसको आप रिवोल्यूशन अकाउंट बोल सकते हो यहाँ पे, 3000, 1800 एंड 1200। ओके, कैश अकाउंट क्लोज करो, 7600 था, 5000 दे दिए उसको रिटायरिंग पार्टनर को, तो 2600 बैलेंस आ जाएगा, तो कैश आएगा यहाँ पे 2600। गुडविल अकाउंट क्लोज हुआ है क्या बच्चों? नहीं, तो गुडविल अकाउंट क्या करो, कैरी डाउन, गुडविल जाएगा एसेट। जो अकाउंट क्लोज नहीं होते बैलेंस शीट को जाएगा सीधा। ओके, नाउ क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे इसमें पहले आपको प्रधान का अकाउंट क्लोज करना है, तो प्रधान का टोटल देखो कितना आएगा, 4200। 4200 में से उसको कैश में हमने 5000 ऑलरेडी दिया है, उतना माइनस करो और उसका लॉस माइनस करो। वी हैव टू पे 34,000 टू प्रधान। ओके, तो इसका नाम दो टू प्रधान्स लोन अकाउंट। और ये जो टू प्रधान लोन अकाउंट है, इसका सेकंड बिट, इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा प्रधान लोन अकाउंट। अकाउंट का मीनिंग भी पता होना चाहिए आपको, क्या हुआ है क्या नहीं, प्रधान के बारे में आपको सोचना आना चाहिए। देखो प्रधान ने इन्वेस्ट कितने किए थे, 33,200, वापस से 3000 का उसको रिजर्व फंड का ओल्ड प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, गुडविल के उसको 4000 मिलने वाले हैं, ऐसे टोटल ही विल गेट 40,200। बट आउट ऑफ दिस वी हैव ऑलरेडी पेड 5000 एंड ही हैज़ टू सफर लॉस 1200 फॉर करंट ईयर। तो
तो टोटल 6,200 माइनस करके उसको 34,000 हमने क्या किया, उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है। उसको हम कैश नहीं दे रहे हैं, कैश सिर्फ फायदा दिया है। तो ये जो 34,000 उसको हम पेबल है, वी आर पेबल टू हिम, तो लायबिलिटी में जाएगा सीधा 34,000। देखो डेबिट में डिफरेंस आया तो हम क्रेडिट में लेते हैं, तो क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। सेम अभी बाकी के पार्टनर्स के अकाउंट क्लोज करो। 47,500 इसका आएगा टोटल, 47,500, देन डिडक्ट द डिफरेंस 45,700। यहाँ का टोटल आएगा 59,500, 59,500 डिडक्ट द टोटल 56,500। ये आपका कैरेट डाउन, और यही कैपिटल यहाँ पे देगा, कैपिटल अकाउंट्स राजा एंड रानी, प्रधान चला गया, राजा रानी का कैपिटल फाइनल कैपिटल रहेगा 56,500 एंड 45,700। अब इसको टैली करो, आपका प्रॉब्लम टैली आएगा 156,900। थैंक यू।